So can you see my screen? Yeah. Okay. So like we understood that we require the client access service. In 2010, we have the client access role, right? Here Mm. a role, only single role, mailbox role. Underneath, they have configured or created as a services like client access service, hub transport service, right? Yes. 2010 we have the role like a client access role, different role, but here they have divided in the services. Only there is a one role is there, that is the mailbox server role, nothing else, and that is as a transport server role, that is a different one, right? Right. So we will try to like here we understanding here what is the actually requirement of client access service, then we will go through it. So I will move next slide. Okay. So normally client access service is a just simple, it is a nothing like we cannot see or any like if you mailbox or database can be seen in the exchange, right? But this is not a stateless, it is not like any, it has any state or region sub, but it is something virtual type. In exchange server, the client access service on mailbox server provides authentication and proxy services for internal and external client connection. So if your connectivity like Outlook client or OVA or mobile connectivity, you are connecting your mailbox, right? So it's supposed to come through the some services that's supposed to get the authentication, then your mailbox supposed to access, right? So this process is handled by the client access service. So if I am opening the Outlook client, so it will get it authenticated with the help of the Active Directory services, whether that username and password is correct or not. Then once it is get the authentication, that token will be received from the Active Directory services, then that mailbox is accessible to you. This is the way how it works, client accessories. So simple, it is giving the authentication, and it will send go to the next send to the next service like proxy services to like once it authenticity happens, it will send that connection to the mailbox server or database or mailbox, right? So this way it will work. Second point, the client access service are stateless. So data is not queued or stored. मतलब इसका मतलब ये है कि स्टेटलेस, मतलब इसमें ऐसा कोई डेटा कहीं पे स्टोर नहीं रहेगा, लाइक अपना मेल बॉक्स का डेटा रहता है, इनबॉक्स का कंटेंट वैसा कुछ भी नहीं है, इट इज लाइक स्टेटलेस. वो जस्ट कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होगा, देन दैट डेटा विल नॉट बी स्टोर्ड, समथिंग लाइक दैट. So that is called a stateless. Or third point, in Exchange Server, the client access services are part of the mailbox server. So you can't configure a standalone client access server like you would in previous version of the Exchange. So like earlier mentioned, ये part of the mailbox server role का service है. So we cannot configure on और एक अलग server पे कुछ नहीं कर सकते. We have to configure this service with along with the mailbox server only, not alone. Like in Exchange 2010 we can configure separately, but in 2016 that is not possible. So the other point, client connected in Exchange 2010 and Exchange 29 is like Exchange 2013 but different from the Exchange 20. मतलब 2016 2019 2013 का similar connectivity का ये है, but 2010 is a totally different. Okay. So other point, Outlook client use MAPI over HTTP or Outlook in your RPC over HTTP. In Exchange 2016 and Exchange 20 MAPI over HTTP is enabled by default. So 2010 में earlier used to RPC over HTTP when you want to connect the from the external Outlook anywhere, right? So here they have changed it to MAPI or HTTP enabled by default. If you want, we can enable the RPC or HTTP also, but we have to manually configure. But by default, it is enabled is MAPI or HTTP in 2016. This सर change. मतलब आउटलुक एनीवेयर कनेक्ट मतलब रहता है तभी उसकी वजह से हम मोबाइल और आउटलुक से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बाहर, ठीक है? Correct, तो correct. तो मैपी और एचटीटीपी का भी सेम यूज़ है क्या मतलब आउटलुक एनीवेयर जैसा? हाँ, सेम ही है, सिर्फ वे कनेक्टिंग का वे अलग है, दोनों का सेम है. ये रिमोट प्रोसीजर कॉल है मैपी का, ये मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है मैपी.
तो प्रोटोकॉल डिफरेंट है, बाकी का जो फंक्शनलिटी सेम है। ये वे ऑफ कनेक्टिविटी डिफरेंट है, बाकी का तुम्हारा पर्पज वही है। वर्ड से तुमको आउटलुक कॉन्फ़िगर करना है, मोबाइल डिवाइस से आउटलुक कॉन्फ़िगर करना है, करेक्ट? क्लियर हर्षल, कुछ डाउट? सर लेकिन ये हमने तो ये मैपी और एचटीटीपी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये तो हमने नहीं देखा ना उधर। वो तो सिर्फ आउटलुक का ही था, आउटलुक एनीवेयर ऑप्शन ना। हाँ, वो हमने वहां पे ऑप्शन आउटलुक एनीवेयर का था, राइट? यस। ये डिफॉल्ट, ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता ना, मैपी और एचटीटीपी एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, करने की मतलब वो जरूरत ही आउटलुक। नहीं है, करेक्ट करेक्ट। अच्छा। तो क्योंकि और ये आउटलुक एनीवेयर 2013 तक ही रहता है क्या? हाँ हाँ, नहीं 13 तक भी नहीं, 2010 तक ही है वो। और 13 में भी मतलब तो यहाँ पे तो 16 और 19 को एच टी टी पी मैपी और एच टी टी पी है, तो 13 में क्या है? 13 में उसने क्या किया है, डिफॉल्ट नहीं किया है, ऑप्शन दिया है तुमको कौन सा चाहिए वो यूज करो। बट 2016 में तुमको बाय डिफॉल्ट ये एनेबल किया है, अगर तुमको आउटलुक आरपीसी और एचटीपी करना है तो तुम कर सकते, ऐसा ऑप्शन किया उसने। अच्छा। हम्म, ओके। ठीक है। नेक्स्ट, और क्लाइंट एक्सेस सर्विस फंक्शनलिटी क्या काम करता है वो? द क्लाइंट एक्सेस सर्विस इन एक्सचेंज सर्वर फंक्शन मच लाइक ए फ्रंट डोर, एडमिटिंग ऑल क्लाइंट कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड राउटिंग देम टू अदर करेक्ट मेल बॉक्स। मतलब क्लाइंट एक्सेस सर्विस का काम इतना ही है, आपका जो फ्रंट डोर का काम जो करते हैं ना अपन, मेन डोर जो अपना घर का एंट्री, जो एंट्री देता है, जो भी क्लाइंट कनेक्ट हो जाता है, आउटलुक क्लाइंट, मोबाइल क्लाइंट, ओवा क्लाइंट, वेबमेल, ये सभी क्लाइंट कहाँ से आता है? कनेक्टिविटी क्लाइंट एक्सेस सर्विसेज ही आएगा, वहां पे वो एंट्री लेगा, अथेंटिकेट होगा, देन एक टाइम अथेंटिक होगा तो वो जो करेक्ट उसका मेल बॉक्स है, उसका बैकएंड को मेल बॉक्स को कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, प्रॉक्सी करेगा। समझ गए ना? हाँ। ठीक है। और सेकंड में, द क्लाइंट एक्सेस सर्विस प्रोवाइड्स नेटवर्क सिक्योरिटी सच एज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टीएलएस, एन्क्रिप्शन एंड मैनेजिंग क्लाइंट कनेक्शन थ्रू रिडायरेक्शन एंड प्रॉक्सी। ये टीएलएस का नया ये है, सिक्योरिटी लेयर बोल सकते हैं हम। ये स्काइप और टीम्स में आता है, आपने देखा होगा टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बोलते हैं, सर्टिफिकेट अथेंटिकेशन बोलते हैं हम टीएलएस को। ठीक है, ये हाँ। एन्क्रिप्शन और क्लाइंट कनेक्शन भी करता है, और जो भी रिडायरेक्शन भी करता है। रिडायरेक्शन मतलब समझ लो, आपने तुम्हारे पास एक दो मेल बॉक्स सर्वर है, मेल बॉक्स वन पे आपका मेल बॉक्स है और सेकंड पे मेरा है, तो बाहर से किसी का भी आता है, वो कनेक्टिविटी अभी किसको भी जा सकता है, राइट? लोड बैलेंसिंग में रहता है, अगर नंबर वन सर्वर पे जा रहा है कनेक्टिविटी, बाद में मेरा मेल बॉक्स नंबर टू पे है, तो वो वहां से रिडायरेक्शन और प्रॉक्सी भी करता है कनेक्टिविटी उसको, तो उसका काम वो भी है। The client access services authenticate client connection and typically proxy the connection request to the mailbox server that holds that active copy of user mail। मतलब जिधर भी मेलबॉक्स सर्वर उसका है, जो भी यूजर कनेक्टिविटी करता है, उधर उसको रिडायरेक्ट करके या प्रॉक्सी करके उसको कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कराता है, वो हेल्प कराता है कि तेरा मेलबॉक्स यहाँ पे है, यू हैव टू एस्टेब्लिश योर कनेक्शन विद दैट मेलबॉक्स सर्वर और मेलबॉक्स। ठीक है। In some cases, the client access service might redirect the request to the client access services on another exchange server, either in a different location or a more recent version of exchange। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है, मल्टीपल तुम्हारे पास सर्वर है, तो कहीं पे भी अगर वो आता है कनेक्टिविटी, तो वो दूसरे मेल बॉक्स सर्वर को, एक्सचेंज सर्वर को रिडायरेक्ट करना है, वो करना है, तो वो भी काम वो करता है। ठीक है, तो इसका ये फंक्शनैलिटी है। और कंटिन्यूशन, द क्लाइंट एक्सेस सर्विस हैज द फॉलोइंग फीचर्स, मतलब उसके फीचर्स क्या क्या है, राइट? स्टेटलेस सर्विस है, उसको कहीं पे भी ऐसा कुछ भी डेटा स्टोर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, स्टेटलेस, कहीं से भी वो उसका फंक्शनलिटी चलेगा। इन प्रीवियस वर्जन ऑफ एक्सचेंज मेनी ऑफ द क्लाइंट प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड सेशन एफिनिटी
For example, Outlook web app in Extend 20 required that all requests from a particular client be handled by specific client server within a load balancer array of clients. तो 2010 में कैसा था, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल था, उसमें अगर हमने लोड बैलेंसिंग में 2 या 3 सर्वर को रखता था तो वो एरे बनता था एक, उसको हम लोग क्लाइंट एक्सेस सर्वर का एरे बोलते थे। उसके अंदर मोर देन वन क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल रहते थे, तो वो उसका अलग कनेक्ट, उसका टाइप का अलग था, हैंडल करता एक अगर हैंडल करा तो उससे वो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, स्टेट है कौन सा भी क्लाइंट एक्सेस सर्विस वो हैंडल कर सकता है उसका। इन एक्शन 27 एंड एक्शन 29 क्लाइंट एक्सेस सर्विस आर स्टेटलेस, मतलब उसको स्टेटलेस है, उसका कहीं भी ऐसा कुछ एक यहाँ पे रहना चाहिए वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इन अदर वर्ड, बिकॉज ऑल प्रोसेसिंग फॉर द मेल बॉक्स हैपन इन द बैक एंड सर्विस ऑन द मेल बॉक्स, इट डज नॉट मैटर विच instance of the client access service in array of client access service receive each individual client request। तो कहीं पे भी आके कहीं से भी वो प्रॉक्सी या किसी और को रिडायरेक्ट कर सकता है। This means that session affinity is no longer required at the load balancing level। लोड बैलेंसिंग जैसा के हिसाब से कुछ काम नहीं है, वो कहीं पे भी कौन सा भी अगर वो तुम्हारा क्लाइंट का सर्विस रहेगा वो कनेक्टिविटी से एस्टेब्लिश करके उसको मेल बॉक्स सर्वर को कनेक्शन एस्टेब्लिश कराएगा बैक एंड पे। This allows inbound connection to client as a service to be balanced by using simple load balancing techniques such as DNS round robin। DNS round robin पता है ना आपको क्या होता है? मैं ये भूल गया सर, बहुत दिन पहले पढ़ा था। ठीक है मैं इसको समझाता हूँ। सर मुझे जब मेल फ्लो होता है वो उस वक्त तो थोड़ा सा मतलब डीएनएस से थ्रू कैसे करते हैं, मतलब क्योंकि कल इंटरव्यू ले रहे थे हमारे L2 हाँ वाले, तो पूछ रहे थे कि हाँ, डीएनएस क्या क्या रोल है मेल फ्लो में ऐसे। डीएनएस का मेल फ्लो क्या है? एमएस रिकॉर्ड जो है मेन वो है, एमएस रिकॉर्ड एक होता है, ठीक है, जो हाँ हमारा इंटरनल मेल आना चाहिए। एमएस रिकॉर्ड अगर है डीएनएस रिकॉर्ड जब भी वो मेल आएगा। दूसरा, एक्सटर्नल मेल जब भी जाता है तो तुम्हारा इंटरनल मेल तो ठीक है, इंटरनल डीएनएस रिकॉर्ड से हैंडल हो जाएगा। जब भी तुमको एक्सटर्नल मेल जाना है, भेजता है, तो तुम्हारा फॉरवर्डर जो है, तुम्हारे डीएनएस सर्वर पे फॉरवर्डर का एक ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे मेरे को याद दिलाना, मैं तुमको फॉरवर्डर का ऑप्शन बताता हूँ इसमें अपने एक्टिव सर्विस में, ठीक है। तो वो फॉरवर्ड क्या करता है, एक्सटर्नल जिसमें ना गूगल का डीएनएस सर्वर है कुछ और सर्वर, वो सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। जैसा एक टाइम बाहर जाएगा, वो पब्लिक जो डोमेन जिसको, जैसे जीमेल को आपने भेजा है मेल, राइट, वो पब्लिक को ढूंढेगा वो डोमेन को, वो वहां पे फिर उसका मेल गेटवे रहेगा जीमेल का, राइट। वो मेल गेटवे हाँ। एक्सचेंज सर्वर आईपी एड्रेस मैप रहेगा। जैसा ही वो मेल गेटवे जाएगा उसका बैकएंड में एक्सचेंज सर्वर रहेगा, राइट, तो वहां पे ट्रैफिक डिलीवर करेगा। ये फ्लो है इसका एक्सटर्नल का, अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब फॉरवर्डर काम करेगा, मैं तुमको बताया तुमको फॉरवर्डर, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ अच्छा, राउंड, सॉरी, राउंड रॉबिन, ओके। राउंड रॉबिन का मतलब क्या है, अभी तुम्हारे पास क्लाइंट एक्सेस सर्विस दो है, ठीक है, तो पहला एक कनेक्शन नंबर वन क्लाइंट एक्सेस सर्विस को आएगा, दूसरा सेकंड को जाएगा, थर्ड और फर्स्ट को जाएगा, फोर्थ, ऐसा मतलब बांटेगा उसको, इसको एक, इसको एक, इसको एक, मतलब इट विल बी बैलेंसिंग। तुम्हारा जो कनेक्शन है, जो भी इनकमिंग कनेक्शन आते हैं ना, अगर 20 कनेक्शन आए तो 10 कनेक्शन इसको जाएगा, 10 कनेक्शन इसको जाएगा, मतलब क्या, बैलेंस रहेगा, तुमको एक ही पे सर्वर पे लोड नहीं रहेगा, समझ गए ना। हाँ हाँ इसको हम राउंड रॉबिन बोलते हैं, इसका डीएनएस राउंड रॉबिन, मतलब इधर एक उधर एक, इधर एक उधर एक, अपन ऐसा बांटते ना। अभी जैसे अपन दो लोग हैं, इसको एक दिया, इसको एक दिया, इसको एक दिया, ऐसा अभी टिकट आएगा तो हम क्या करते हैं, 5 लोग हैं तो इसको एक, इसको एक, इसको ऐसा देते हैं ना, जैसे अपना हम्म, टीम में तू एक कर, तू एक कर, उसी तरह वो कनेक्शन क्या करता है, जो इनकमिंग जो आता है ना उसको देता है, इसको देता है, जितने एक एक ऐसा, मतलब ऑलमोस्ट ऑल वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं सर राउंड। मतलब ये अगर सपोज एक्सटर्नल डोमेन से मेल आ रहा है और हमारे पास दो मेल बॉक्स डेटाबेस सर्वर है, हम्म ठीक है, हम्म तो हमारा मेल बॉक्स जो मेल बॉक्स डेटाबेस सर्वर है फर्स्ट पे हमारा बना हुआ है, तो हम्म ऐसा नहीं रहता है क्या, मतलब वन पे ही उसका डेटा बनेगा या टू टू पे जाएगा, ऐसा कुछ रहता है क्या हाँ ओके, मतलब? तुमको मेल फ्लो का ना मैं थोड़ा बता दूं। अभी कैसा है, मैं दो, अभी जब से अभी तुम्हारा एक्सचेंज सर्वर है, बाहर से एक मेल आया, ठीक है, वो मेल कहाँ पे आएगा, पहला तुम्हारा मेल गेटवे पे आएगा जिधर एमएस रिकॉर्ड है आपका, करेक्ट। हाँ हाँ
ठीक है, आपका कोई तो मैसेज ले, आप आयरन पोर्ट, 12 पोर्ट, आप कुछ भी एक आपका अप्लायंस रहेगा थर्ड पार्टी का, ठीक है, वो अप्लायंस आपका एमएक्स रिकॉर्ड विथ पब्लिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर रहेगा, ठीक है। तो उसके हाँ पीछे आपका एक्सचेंज सर्वर रहेगा, मतलब उसको कॉन्फ़िगर रहेगा, मतलब अभी नेक्स्ट होप किधर जाएगा, वहां से तुम्हारा एक्सचेंज सर्वर पे जाएगा, मेल बॉक्स सर्वर पे, करेक्ट। मतलब हाँ पे तो आ गया मेल गेटवे पे एमएस रिकॉर्ड है बोल के आपके पास आया, राइट। आपका xyz.com डोमेन है, तो आपका एमएस रिकॉर्ड वो मेल गेटवे पे कॉन्फ़िगर्ड है, तो वहां पे वो बाहर से जब डीएनएस सर्वर क्या करेगा, ढूंढेगा xyz.com कहाँ पे है, हाँ ये मेल गेटवे को वहां पे पॉइंटिंग कर रहा है उसका पब्लिक आईपी के साथ में, तो वो बोलेगा ठीक है इसका ये है होप, नेक्स्ट होप, यहाँ पे भेज देगा। एक टाइम यहाँ पे आया, मेल गेटवे को पता है कि मेरे को नेक्स्ट कहाँ पे भेजना है, मेरे एक्सचेंज सर्वर को भेजना है, मेरा इंटरनल एक्सचेंज सर्वर मेरा मैप्ड है, उसका नेक्स्ट होप कहाँ पे रहेगा, एक्सचेंज सर्वर मेल बॉक्स सर्वर पे रहेगा। तो वहां पे मेल फिल्टरिंग वगैरह जो भी पॉलिसीज है अप्लाई करके चेक करके वो क्या करेगा, आपके मेल बॉक्स सर्वर पे आएगा। एक टाइम मेल बॉक्स सर्वर पे आया, जैसा कि आपका ईमेल आईडी को, तो कोई तो एक डेटाबेस में रहेगा, आपके पास 5 डेटाबेस है, तो एक डेटाबेस पे आप पे मेल बॉक्स रहेगा, वो क्या करेगा, मेल बॉक्स सर्वर ये मेल बॉक्स का कौन से डेटाबेस है उस पे स्टोर ड्राइवर के हेल्प के से उसको डिलीवर करेगा आपके मेल बॉक्स पे। जैसा ही तुम्हारे मेल बॉक्स पे डिलीवर होगा, तुम्हारे आउटलुक में पॉपअप, मतलब न्यू मेल अराइव्ड बोल के आता ना, वो वैसा होएगा। इसका ये टाइप का एक्सटर्नल मेल फ्लो जो इनकमिंग अंदर आता है, ऐसा फ्लो है इसका। समझ गए? हाँ, पर ये मुझे इसका नहीं समझ में आया कि क्लाइंट एक्सेस का एक किधर एक उधर जाता है, आप अभी बोले ना हाँ दोनों ओके, तरफ। यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत हो। क्लाइंट एक्सेस हाँ का रोल क्या है, ये बताओ मेरे को। तुम कन क्लाइंट एक्सेस। हाँ अभी मेरे को बोलो, मैं बोलता नहीं, तुम क्लाइंट एक्सेस सर्विस का रोल क्या है। हमने रोल अंडरस्टैंड किए है ना, मेल हाँ हाँ रोल क्या है, क्लाइंट एक्सेस क्या है, हब ट्रांसपोर्ट का हब आपका अलग अलग मीनिंग है ना, सब एक ही हाँ हाँ क्या, नहीं। क्लाइंट एक्सेस सर्विस इज ओनली फॉर द क्लाइंट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, नॉट अ मेल फ्लो। मेल फ्लो इज हाँ बाय हब ट्रांसपोर्ट सर्विस, नॉट अ क्लाइंट एक्सेस सर्विस। समझ गए? हाँ हाँ ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है ना, उसके लिए मैंने 2010 के रोल्स को आपको इंट्रोडक्शन में लिया था, क्योंकि समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि एक ही मेल बॉक्स सर्वर रोल में सभी सर्विसेज डाला है। क्लाइंट 2010 में क्या किया है, इंडिविजुअल रोल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेल फ्लो इज हैंडल्ड बाय ओनली हब ट्रांसफर सर्विस, क्लाइंट एक्सेस सर्विस नहीं। सिर्फ वो कनेक्शन प्रॉक्सी बना के उसको एस्टेब्लिश करता है, मेल फ्लो का काम नहीं करता है वो। समझ अच्छा गया? अच्छा अच्छा, कनेक्शन के लिए। हाँ, अच्छा। कंफ्यूज मत हो आप, हर रोल का अपना अपना काम है, यहाँ पे कोई दूसरे का काम नहीं करता है। दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। यहाँ पे आप समझो, क्लाइंट एक्सेस सर्विस मतलब उसके लिए मैंने ये अभी आपको ये पीपीटी लिया है कि समझने के लिए। क्लाइंट एक्सेस सर्विस का काम सिंपल इतना ही है, क्लाइंट कनेक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट करता है आउटलुक का, ओवा का, मोबाइल डिवाइस का, ठीक है, वो मेल फ्लो का काम नहीं करता है। सिर्फ क्लाइंट एक्सेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, मतलब क्या काम करता है वो, आपका मेल बॉक्स किधर है वहां पे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कराएगा। मेल फ्लो इज हैंडल्ड बाय द हब ट्रांसफर सर्विस। ओके ओके। समझ गए? हाँ क्लियर ना? ठीक है, वो हम ट्रांसफर सर्विस में देखेंगे वो कैसा मेल फ्लो करता है। ये यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट क्लाइंट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का करना है, देखना है अपना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं नहीं नहीं। क्लाइंट ओनली फॉर क्लाइंट कनेक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट, लाइक आउटलुक क्लाइंट से, मोबाइल डिवाइस का कनेक्ट डिवाइस से, और ओवा से, तीन है अपने पास कनेक्टिविटी इनकमिंग जो आता है बाहर से, ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ। तो वो कनेक्टिविटी का एस्टेब्लिशमेंट ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट करके आपका मेल बॉक्स किधर है वो उसको एक एस्टेब्लिश कराएगा कनेक्टिविटी, बस उसका काम उतना हो गया। Sorry, ठीक है, सो विल मूव टू नेक्स्ट। ओके, अभी और क्या करेगा, इसमें थोड़ा पॉइंट दिया है, इट आल्सो अलाउज हार्डवेयर लोड बैलेंसिंग डिवाइस टू सपोर्ट सिग्निफिकेंटली मोर कंकरेंट कनेक्शन फॉर मोर सी लोड। ओके, मतलब ये लोड बैलेंसिंग, एक तो डीएनएस का लोड बैलेंसिंग होता है, एक हार्डवेयर का लोड बैलेंसिंग होता है। डीएनएस का राउंड रॉबिन के इसमें काम करता है, ये दूसरा हार्डवेयर का एक होता है, ये भी
वो इसका भी एक फॉर्मेट अलग है, बट ये राउंड रॉबिन नहीं करता है, वो अपने हिसाब से काम करता है, बट वो भी लोड बैलेंसिंग करता है। इसके अंडर में 2 सर्वर अगर है तो कनेक्शन उधर थोड़े देगा, इधर थोड़े देगा, वो सेम ये भी लोड बैलेंसिंग करता है। कनेक्शन पूलिंग, the client as a service handles client authentication and sends the authorization data to the backend service on mail। तो क्लाइंट एज सर्विस क्या करता है, क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन भी हैंडल करता है, मतलब ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करता है करेक्ट है या नहीं है, विद द हेल्प ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी का सर्विस आएगा, उसके पास क्लाइंट एक्सेस सर्विस के पास उसको पता रहेगा कौन से एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस या डोमेन कंट्रोलर है, उसको पता रहेगा कौन सी साइट में कौन सा है। तो वो हिसाब से उसको रिक्वेस्ट भेज के एलडैप के थ्रू, वो प्रोटोकॉल के थ्रू भेज के वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। फिर एक टाइम ऑथेंटिकेट करेगा, वो जिधर भी उसका मेल बॉक्स है, जैसे तुम्हारा मेल बॉक्स डेटाबेस 1 पे है, तो वो सर्वर एक्सचेंज सर्वर 1 पे है, तो वहां पे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करा के छोड़ देगा, खत्म, उसका काम हो गया। The account that is used by the client access service to connect to the backend service on mailbox is a privileged account that is a member of the exchange server group। तो ये अकाउंट जो सर्विस अकाउंट रहते हैं, ये अकाउंट वो एक्सचेंज सर्वर ग्रुप में वो ऐड होते हैं ऑटोमेटिक। जब हमने एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो बिल्ट इन थोड़े ग्रुप्स रहते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दिस अलाउज द क्लाइंट एक्सेस सर्विस टू पुल कनेक्शन टू द बैकएंड सर्विस ऑन मेलबॉक्स सर्वर सर्विस, मतलब वो बैकएंड सर्वर को जो भी जिधर भी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना है वो इजीली कर पाएगा। An array of client access service can handle millions of client connections from the internet, but far fewer connections are used to proxy the request to be backend services on mailbox server than in exchange to this improve the processing efficiency and end-to-end efficiency। मतलब क्या है, अपना क्लाइंट कनेक्शन 2016 में कैसा होता है, एक ही सर्वर पे है, राइट, मेलबॉक्स सर्वर पे क्लाइंट एक्सेस सर्विस रन कर रहा है। एक्सचेंज में 2010 में कैसा था, अलग अलग सर्वर रहते थे, ये सर्वर से ये सर्वर को कनेक्शन जाना था, वहां पे थोड़ा लेटेंसी बोलते हैं ना अपन, टाइम जो डिले होता वो होता था। यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वहां पे सिर्फ वही सर्वर में तुमको कनेक्शन जाना है, मतलब वहां पे क्लाइंट कनेक्शन आया, फिर वो बैकएंड मेलबॉक्स सर्वर पे वहीं पे है, मतलब सर्विस वहीं पे रन हो रही मेलबॉक्स की, या डेटाबेस वहीं पे है, तो आपको ज्यादा लेटेंसी नहीं मिलेगा। वो इंप्रूवमेंट है 2016 में। 2010 में दूसरे सर्वर पे रहता था, क्लाइंट एक्सेस सर्वर किसी और सर्वर पे, डेटाबेस किसी और सर्वर पे, जो लेटेंसी आता है दोनों का, जो वहां से डेटा ट्रांसफर होने का, वो लेटेंसी आता था, यहाँ पे नहीं आता, ऐसा बोल रहा हूँ। और क्या करता है मैनेजमेंट टास्क इन क्लाइंट, और क्या क्या टास्क करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट, इसको एक अपने को सर्टिफिकेट पब्लिश करना रहता है, पता है आपको। जब ये एक्सटर्नल अपना रहता है, तो एक जो भी अपना डोमेन का सर्टिफिकेट रहेगा, उतना मेल एक्सचेंज सर्वर के डिटेल्स के साथ में अपना सब्जेक्ट अल्टरनेट नेम्स बोल के आता है ना, जो सैन नेम्स बोलते हैं हम, जो सर्टिफिकेट में, वो ऑथेंटिकेट, वो बेस पे वो तुम्हारा क्लाइंट से ऑथेंटिकेट होएगा कि ये मेरा क्लाइंट कनेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है, ये मेरा सेम जो सर्टिफिकेट तुम्हारा एक्सचेंज में रहता है वो डाउनलोड होएगा कहाँ पे, तुम्हारे क्लाइंट मशीन में, तो वो वेरीफाई करेगा, हाँ ये मेरा इस सर्टिफिकेट है, देन इट विल अलाउ टू कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, राइट। तो उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट का, डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं हम लोग। और एक सेल्फ साइन रहता है, सेल्फ साइन मतलब इंटरनल रहता है, वो जैसा ही तुम्हारा इंटरनल सर्वर बनता है, वो एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली बनाता है तुम्हारे सर्वर के साथ में। एक होता है एक्सटर्नल सर्टिफिकेट या डिजिटल सर्टिफिकेट। एक्सटर्नल मतलब हमको वेंडर से, थर्ड पार्टी से लेना है उसको, 2 साल का उसका एक्सपायरी रहता है, वी हैव टू पे द मनी एंड वी कैन गेट इट। तो वो तुम्हारा एक्सटर्नल जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करता है, नहीं तो वो नहीं वर्क करेगा अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं रहा तो, ठीक है। और कैरबरस ऑथेंटिकेशन फॉर लोड बैलेंस क्लाइंट, मतलब अपना इंटरनल अगर तुम्हारा बोलते हैं ना यूजर्स का कनेक्शन से आएगा तो कैरबरस प्रोटोकॉल यूज होगा, अगर बाहर से अगर कनेक्ट आ रहा तो एनटीएलएम होएगा। ये डोमेन बेस्ड ज्वाइन मशीन कैरबरस ऑथेंटिकेशन करते हैं, और बाकी का जो बोलते हैं ना अपन बाहर से जो एक्सटर्नल नेटवर्क या इंटरनेट से आता है, उसका एनटीएलएम सपोर्ट करेगा वेब बेस्ड। एनटी हाँ, ठीक है, एनटी एनटीएलएम जो टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन, एक तो कैरबरस V5 प्रोटोकॉल है, वो इंटरनल डोमेन ज्वाइंट मशीन जो तुम्हारा इंटरनल नेटवर्क में तुम है, जब वो काम में आएगा। एनटीएलएम जो है एक्सटर्नल जो इंटरनेट से जो कनेक्शन करते हैं ना, उन लोगों के लिए है आएगा, वो HTTPS वेब बेस्ड ट्रैफिक आएगा ना वहां से, बाहर से, हाँ हाँ ठीक है। और क्या करता है उसका, और थोड़ा सा डिटेल में, ऑटो डिस्कवरी सर्विस मिनिमाइज यूजर कॉन्फ़िगरेशन एंड डिप्लॉयमेंट स्टेप बाय प्रोवाइडिंग क्लाइंट टू द एक्सक्यूशन। मतलब ऑटो डिस्कवरी क्या करता है, मतलब ऑटो डिस्कवरी कहाँ पे आता है, क्लाइंट एक्सेस सर्विस में, राइट।
तो वो आपको पता है, हमने इस पे डिस्कशन किया है, वो हेल्प करता है आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर करने के लिए, करेक्ट। जस्ट आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, ऑटोमेटिकली जो एक्सचेंज रिलेटेड यूआरएल्स है वो सभी फेच करेगा विद द हेल्प ऑफ द ऑटो डिस्कवरी सर्विस। ऑटो डिस्कवरी सर्विस नथिंग बट ए डीएनएस रिकॉर्ड रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जैसा कि outlook.com या ऑटो डिस्कवरी डॉट outlook.com इधर तुम्हारा डोमेन है, या outlook.xyz.com एक डोमेन है, तो तुमने एक ऑटो डिस्कवरी डॉट xyz.com एक ऑटो डिस्कवरी सर्विस को क्रिएट किया। जैसा ही तुमने वो तुम्हारा harshal@xyz.com आपने डालते पासवर्ड डालते, वो ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड जो है यूआरएल को फेच करेगा विद द हेल्प ऑफ द ऑटो डिस्कवरी सर्विस। तो ऑटो डिस्कवरी सर्विस सब डिटेल्स देगा एक्सचेंज के रिलेटेड। पहले जब हम मेल बॉक्स आउटलुक कॉन्फ़िगर करते थे पहले, लाइक 2003 2007 में, हमको क्या करना पड़ता था, सब डिटेल डालना पड़ता, एक्सचेंज का इनकमिंग सर्वर, आउटगोइंग सर्वर, पोर्ट, ये वो सब डालना पड़ता। अभी आपने को कुछ डालना नहीं, सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है, करेक्ट ना। हाँ तो ऑटो डिस्कवरी का वो फायदा है। और आपका मोबाइल डिवाइस में भी आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है, बाकी का कौन फेच करता है इंफॉर्मेशन, ऑटो डिस्कवरी। ऑटो डिस्कवरी सर्विस मिनिमाइज यूजर कॉन्फ्यूजन डिप्लॉयमेंट step by providing client access to एक्सेस सर्वर। ऑटो डिस्कवरी कम्स अंडर दी क्लाइंट एक्सेस सर्विस, ये पूछेगा क्वेश्चन इंटरव्यू में। ऑटो डिस्कवरी का काम क्या है? फॉर एक्सचेंज ऑफ सर्विस ईडब्ल्यूएस client auto discovery is typically used to find the EWS endpoint URLs. However, auto discovery can also provide information to configure client that uses the other product. EWS का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ सर्विस पता है आपको? नहीं, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अवेलेबिलिटी सर्विस पता है आपको ना? अवेलेबिलिटी मतलब अभी आप किसी को तो मीटिंग बोलते हैं ना, मीटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, आप उसका अवेलेबिलिटी देखते हैं ना, 10 से 11 फ्री है क्या नहीं। वो शेड्यूलिंग असिस्टेंट आता है ना आउटलुक में, जब ये स्काइप मीटिंग या टीम मीटिंग अगर आपने कर रहे हैं, तो आप अभी जैसा कि आप मेरे को मीटिंग भेज रहे हैं, राइट, 10 से 11, तो मैं वो टाइम फ्री हूँ या नहीं हूँ कैसा मालूम पड़ेगा आपको? नहीं मालूम पड़ेगा, राइट। या तुम मेरे को पूछना पड़ेगा, मेरे को तुमको कैलेंडर में मेरा वो स्लॉट फ्री है क्या नहीं देखना है, करेक्ट ना? हाँ समझ गए ना आप वो पॉइंट? हाँ हाँ, तो वो अवेलेबिलिटी जो है कौन हेल्प करता है? ईडब्ल्यूएस सर्विस बोलते हैं उसको, एक्सचेंज वेब सर्विसेज। और आउट ऑफ ऑफिस का कौन भेजता है? आप आउट ऑफ ऑफिस डालने के बाद सामने वाले को आउट ऑफ ऑफिस जाता है ना, एक मैसेज भी जाता है, प्लस आपको जैसा वो आपका कांटेक्ट ये करा तो वहां पे एक मैसेज पॉप होता है ना, ये आउट ऑफ ऑफिस है बोल के, एरो मार्क चेंज होता है, करेक्ट ना? हाँ वो भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक्सचेंज वेब सर्विसेज। ये याद रखना, इंटरव्यू पूछेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल ओएफ एंड अवेलेबिलिटी सर्विस इज ईडब्ल्यूएस सर्विसेज। ये सर्विसेज इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ये अगर सर्विसेज नहीं चल रही तो तुम्हारा आउटलुक आउट ऑफिस नहीं चलेगा और अवेलेबिलिटी सर्विस नहीं चलेगा। और दूसरा, तुम्हारा स्काइप अकाउंट या क्या बोलते हैं टीम्स अगर है, उसमें स्टेटस दिखता है ना आपको, बिजी, मीटिंग, इन कॉल, अवे, ये कौन करता है? वो इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ईडब्ल्यूएस सर्विस। ये याद रखो, पूछेगा आपको। हाँ सर, और इसके लिए नहीं क्या मतलब रूम मेल बॉक्स बनाते हैं उसके लिए भी यही रहता है क्या? हाँ या हाँ, यही रहता है, रूम मेल बॉक्स का अवेलेबिलिटी सर्विस के लिए यही रहता है। मैं तुम्हारे को ये थोड़ा एकदम एक्सचेंज का हुआ तो एक आउटलुक क्लाइंट कॉन्फ़िगर करके तुमको समझाता हूँ कैसा ईडब्ल्यूएस, ओएफ, ऑटो डिस्कवर यूआरएल कैसा वेरीफाई करना है, क्या नहीं, ऑटो डिस्कवर कैसा चेक करना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ईडब्ल्यूएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ठीक है, एक्सचेंज 20 introduced the change to the service that were previously handled by the multiple server. The mailbox server now provides client access service, so you can't configure a standalone client access service like you could in do previous version exchange. तो जैसा हमने बोला कि अभी क्लाइंट एक्सेस सर्विस ये मेलबॉक्स सर्वर का पार्ट है, तो अलग सा कुछ नहीं कर सकते जैसा कि हम 2010 में करते थे, राइट। ऑटो डिस्कवरी सर्विस इन एक्सचेंज 20 and एक्सचेंज 20 is possible because Exchange creates a virtual directory named Auto Discovery under the default site in Internet Information Service (IaaS). Accurately stores and provides the authoritative URLs for domain joined computers. Client access service on mailbox servers provide authentication proxy service for internal and external client connection. Outlook configure service with the only the username and password. तो नॉर्मली ऑटो डिस्कवरी कैसा होता है, जब भी तुम्हारा सर्विस एक्सचेंज क्रिएट होता है ना, वहां पे IaaS में ऑटो डिस्कवरी बोल के डिफॉल्ट साइट बनता है, क्योंकि
वो HTTPS प्रोटोकॉल से हेल्प से वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। वो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो बना देता है वर्चुअल डायरेक्टरी। वो हम एक्सचेंज सर्विस को ओपन करेंगे तो मैं IIS में बताऊंगा उसका, ठीक है। और ऑटो डिस्कवरी क्या करता है, आपको जो भी डोमेन ज्वाइन जो यूजर्स रहते हैं उसको URL दे के ऑथेंटिकेट प्रोवाइड करता है। मतलब ऑटो डिस्कवरी में क्या रहता है, अपना HTTPS के प्रोटोकॉल इंटरनल और एक्सटर्नल दो URLs रहते हैं, जैसा कि xyz.com/auto-discovery डॉट ऐसा। तो मैं वो ऑटो डिस्कवरी का टाइप का वो URL भी बताऊंगा क्या टाइप फॉर्मेट में रहता है। तो ये ऑथेंटिकेशन करता है। और आपको अगर मोर देन वन मेल बॉक्स सर्वर है तुम्हारा, जैसा नंबर वन है, नंबर टू एक्सचेंज है, तो तुम्हारा वो कनेक्शन अगर किसी वन को आया, अगर तुम्हारा मेल बॉक्स समझ लो टू पे है, तो वो तुमको प्रॉक्सी भी करता है, मतलब उसको उधर कनेक्शन एस्टेब्लिश कराता है, ठीक है। ये भी काम करता है, ऑथेंटिकेट करता है प्लस प्रॉक्सी कराता है, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कराता है तुम्हारे मेल बॉक्स को, ठीक है। तो ये उसका काम है, ठीक है। ऑटो डिस्कवर सर्विस एंड एक्टिव डायरेक्टरी, exchange stores in active directory configuration of exchange server in the organization has well as information about your user। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी का हेल्प से ये क्लाइंट सर्विस काम करता है। एक्टिव डायरेक्टरी सब मालूम रहता है आपका मेल बॉक्स कहाँ पे है, वो क्या है, कौन से सर्वर पे है, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन सब स्टोर होता है कहाँ पे, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में, राइट। बिफोर यू इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर यू नीड टू प्रिपेयर योर एक्टिव डायरेक्टरी फॉर एंड इट्स डोमेन। हम एक्सचेंज इंस्टॉलेशन करने से पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर करते, राइट, एक्टिव डायरेक्टरी को। जैसा स्कीमा प्रिपेयर किया, AD प्रिपेयर किया, बाद में डोमेन, 3 स्टेप्स फॉलो किया। तो वो उसको पता है एक्टिव डायरेक्टरी कि हमने एक प्रिपेयर किया तो उसकी इंफॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में मिल जाएंगे। उसके लिए वो आपका कहाँ पे मेल बॉक्स है, कहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश होना है, वो उसको पता चलता है। Exchange automatically recreates at installation the virtual directory auto discovery in IR, the friend and client service website that clients connect to। मतलब ये ऑटोमेटिक वर्चुअल डायरेक्टरी ऑटो डिस्कवरी क्रिएट करा वो करता है, जैसा हम लोग एक्सचेंज इंस्टॉल करते हैं ना, वो टाइम में क्रिएट करता है, हमने मैन्युअली कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिकली बन जाता है। This allows Outlook to discover the Exchange mailbox setting to so that user don't have to deal with manually configuration advanced setting। मतलब ऑटो डिस्कवर का काम क्या है, ऑटोमेटिक जो सेटिंग्स होते हैं तुम्हारे एक्सचेंज मेलबॉक्स सेटिंग्स हो, एक्सचेंज सर्वर के, वो ऑटोमेटिक वो आउटलुक को देता है, वो फिर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है, तो अपने को मैन्युअली कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑटो डिस्कवरी का प्रोसेस है, किस तरह, जैसा कि आउटलुक क्लाइंट जैसा ही तुम्हारा ओपन होता है तो वो क्या करता है, क्वेरी करता है। आउटलुक क्लाइंट क्या क्वेरी करता है, SCP सर्विस कनेक्शन पॉइंट बोलते हैं इसको। किसको करता है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को करता है क्वेरी, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को पता है ना कि तुम्हारा एक्सचेंज सर्वर तुम्हारे इन्वायरमेंट में है या नहीं है, और उसके डिटेल्स इसको पता रहता है। जैसा ही क्वेरी करेगा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को, तो पहले ऑथेंटिकेट होगा, क्योंकि ऑथेंटिकेट होना है ना एक्टिव डायरेक्टरी में, यूजर नेम पासवर्ड। एक टाइम ऑथेंटिकेट होने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज क्या करेगा, ओके आई हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सचेंज सर्वर एक्टिव डिस्कवरी का, वो URLs को इंटरनल और एक्सटर्नल URLs रहेगा वो। अगर तुम्हारे इंटरनल से कनेक्ट करे तो इंटरनल यूज होगा, एक्सटर्नल से कनेक्ट करे तो एक्सटर्नल यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा वो URLs वापस किसको देगा, आउटलुक क्लाइंट को देगा। आउटलुक क्लाइंट करे वो URL लेगा, अगर इंटरनल है तो इंटरनल URL से कनेक्ट होगा, अगर एक्सटर्नल से कनेक्शन हो रहा है तो एक्सटर्नल से होगा। कनेक्ट यूजिंग HTTPS, अपना URL क्या रहेगा, HTTPS / अपना डोमेन रहेगा xyz.com/auto-discovery.xml। ये एक फॉर्मेट है उसका ऑटो डिस्कवरी का URL का, वो लेके कहाँ पे कनेक्ट होएगा, क्लाइंट एक्सेस सर्विसेज को कनेक्ट होएगा। एक टाइम क्लाइंट एक्सेस सर्विसेज को कनेक्ट हुआ तो उसको मालूम है कि तुम्हारा मेल बॉक्स कहाँ पे है, वो तुम्हारा मेल बॉक्स का प्रॉक्सी कराएगा मेल बॉक्स सर्वर के साथ में, देन योर कनेक्शन विल बी गेट एस्टैब्लिश्ड। जैसा ही एस्टैब्लिश होगा तुम्हारा इनबॉक्स, तुम्हारा प्रेजेंस, ये वो सब मीटिंग के सब तुम्हारा अपडेट होना शुरू होएगा, फिर देन योर मेल बॉक्स विल बी कनेक्टेड टू द बैकएंड मेल बॉक्स सर्वर से, ठीक है। तो ऑटो डिस्को रिटर्न्स एड्रेसेस अवेलेबल सर्विस, मतलब तुम्हारा एड्रेस बुक होएगा, फिर अवेलेबिलिटी सर्विस मतलब EWS जो बोलते हैं हम लोग, अगर तुम्हारा कॉन्टेक्ट्स के अपडेट्स होएगा, तुम्हारा प्रेजेंस अपडेट होएगा, जो मीटिंग्स कुछ अपकमिंग है वो सब अपडेट्स हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए क्लाइंट एक्सेसरीज का। यस, यस। तो हम अभी
प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, मैं एक्सचेंज सर्वर को कनेक्ट करता हूँ एक मिनट। ये बहुत रोल्स इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा स्लाइड से गो थ्रू भी हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ सर। क्योंकि इंटरव्यू में ये लोग पूछेगा। ऑटो डिस्कवरी क्लाइंट एक्सेस सर्विस मतलब ऑटो डिस्कवरी का इंपॉर्टेंट रोल है। ईडब्ल्यूएस क्या होता है, ठीक, ऑटो डिस्कवरी का क्या है, क्या रिकॉर्ड है, कहाँ कैसा बनता है, डिफॉल्ट बनता है या बनाना पड़ता है, ये सब थोड़ा सा पूछते हैं लोग, तो वो थोड़ा आपको माइंड में रखना है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। और आपको हेल्प होता है कि कैसा कनेक्शन फ्लो हो रहा है, क्या नहीं, वो समझ में आ जाता है आपको। ठीक है, ये हमारा एक्सचेंज सर्वर है। ठीक है, हमने कल सर्वर टैब का देख रहे थे। तो स्क्रीन नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं दिख रहा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे अभी हमने ये सर्वर टैब में सर्वर डेटाबेस, डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप भी देखा। डेटा अवेलेबिलिटी ग्रुप तो है नहीं, अभी हमने कुछ किया इसको, इसमें ब्लैंक वर्चुअल डायरेक्टरी। तो वर्चुअल डायरेक्टरी कौन कौन से होते हैं अपने को समझना है। ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वर्चुअल डायरेक्टरी क्रिएट होते हैं, हमको डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल डायरेक्टरी को समझना है देख के। ठीक है, ये सब डिफॉल्ट है, हमने कुछ किया नहीं, मतलब मैन्युअली कुछ नहीं किया। मैन्युअली क्या करना है मैं आपको समझाऊंगा अगर कुछ चेंजेस करना है। ये हम एक एक बोल के समझेंगे। ठीक है, एक एक को अपने को, ये कहाँ पे आते हैं वर्चुअल डायरेक्टरी। सर्वर्स में। नहीं, सर्वर में सही है, बट कौन से रोल में आते हैं। अभी हम कौन सा रोल पढ़ा, क्लाइंट एक्सेस में। क्लाइंट एक्सेस। ऑटो डिस्कवरी कम्स अंडर क्लाइंट एक्सेस, ईडब्ल्यूएस कम्स अंडर क्लाइंट क्लाइंट एक्सेस। एक्सेस, वेब कम्स अंडर क्लाइंट, ऐसा। क्लाइंट। तो ये डायरेक्टली कहाँ पे बनते हैं, सर्वर पे बनते हैं, बट कौन सा रोल रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मेरा बोलना मतलब। ठीक है, क्लाइंट एक्सेस। हाँ तो हम अभी इसको एडिट करेंगे, एक एक देखेंगे, मतलब उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या रहता है। ठीक है, ये सर्वर का नाम है, लास्ट मॉडिफाइड टाइम है। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन, टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड विंडोज ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन। बेसिक मतलब नॉर्मल पासवर्ड आपका प्लेन टेक्स्ट में फॉर्मेट पास होता है, ये आपको आप इसको चेक मार्क हटा भी सकते हैं या रख सकते हैं, तो आपका डिपेंड करता है। और डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन फॉर विंडोज डोमेन, मतलब ये सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन एक नेक्स्ट लेवल है, हायर लेवल ऑथेंटिकेशन है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए हम उसको नहीं जाना है। अपनी इंटीग्रेटेड विंडोज ऑथेंटिकेशन इज ओके एंड बेसिक ऑथेंटिकेशन इज ओके फॉर अस, तो ये दोनों बाय डिफॉल्ट है, तो ये गुड है, ये अच्छे है अपने लिए। ठीक है, सर वो सर्टिफिकेट कहाँ से बाइंडिंग करते हैं इधर मतलब। हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे नेक्स्ट टैब है, मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर इसके बाद का टैब है, बताता हूँ। तो ये हुआ ऑटो डिस्कवरी का साइट का डिटेल्स। ठीक है, तो बाद में एक्टिव सिंक का, एक्टिव सिंक कई के लिए काम में आता है। एक्टिव सिंक मोबाइल डिवाइस के लिए काम में आता है। अगर आपका एक्टिव सिंक अगर नहीं चल रहा है तो मोबाइल से आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, समझ गए ना हर्षल। ओनली ओनली मोबाइल के लिए या हाँ हाँ मतलब। एग्जैक्टली, हाँ वो सिर्फ मोबाइल डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। आउटलुक क्लाइंट के लिए, वोवा के लिए, वेबमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्टिव सिंक। ओनली एक्टिव सिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबाइल आउटलुक। डिवाइस कनेक्टिविटी, दूसरा कुछ उसका काम नहीं है। ठीक है, तो इसका भी सेम ऑथेंटिकेशन टैबिंग्स है यहाँ पे, क्योंकि अभी मोबाइल डिवाइस मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क से आता है, तो उसके लिए हाँ। बाइंडिंग एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए यहाँ पे ट्रू आ गया। करेक्ट, हाँ। और बेसिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट क्लाइंट सर्टिफिकेट, या आप ये सेटिंग्स अपने को चेंज कर सकते हैं जैसा भी रिक्वायर्ड, बाय डिफॉल्ट ऐसा है ये। अगर अपने को एक्सेप्ट क्लाइंट सर्टिफिकेट, ये रिक्वायर्ड, ये इग्नोर क्लाइंट, जो भी आपने अपने को रखना है रखना है, ये डिफॉल्ट है। अगर आपको चेंजेस करना है तो चेंजेस भी कर सकते हैं, इश्यू नहीं। नेक्स्ट इज ईसीपी। ईसीपी मतलब
एक्सचेंज कंट्रोल पैनल जो हमने ओपन किया ना, ये ईसीपी ओपन किया, हम हाँ इसको बोलते हैं ईसीपी। ठीक है, तो इसमें एक्सचेंज सर्वर का है, वर्जन है, वेबसाइट कौन सा डिफॉल्ट है, लास्ट मॉडिफाइड, ये यूआरएल है अपना ईसीपी का। ठीक है, ये ईसीपी का एचटीटीपीएस हमने मेल डॉट डिजिटल ट्रेनिंग डॉट इन तो अपना डोमेन है। मेल ये जो एक होस्ट रिकॉर्ड बना है, मैं वहां पे डीएनएस में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं या एक्सचेंज सर्वर का नाम भी डाल सकते हैं, EXCH01-2016 भी आप डाल सकते हैं, या ये कोई भी एक रिकॉर्ड बना के डाल सकते हैं। ये मैंने आपको बताऊंगा यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये सेम ऑथेंटिकेशन का टैब है, आपको जैसा चाहिए वैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो अपना सिंगल साइन ऑन के जैसा रहता है ना, वो टाइप का ये ओपन होएगा ये विंडो, वो हिसाब से मैं बताता हूँ आपको ये विंडो कैसा ओपन होता है। यहाँ पे मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होता ना? हाँ हाँ एक हाँ, यहाँ पे मल्टी, वो नहीं, फॉर्म बेस्ड है। फॉर्म बेस्ड मतलब आपका डोमेन प्लस यूजर नेम आएगा, ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं है अभी। बाद में ईडब्ल्यू, यहाँ पे देखो ईडब्ल्यू आया, एक्सचेंज वेब सर्विसेज, फ्री बीजी, आउट ऑफ ऑफिस, सब ये आपका यहाँ से होता है। एक इंटरनल यूआरएल है, एक एक्सटर्नल यूआरएल है। ठीक है, एक्सटर्नल थोड़ा अलग होता है नॉर्मली, आपको पता है डॉट कॉम रहेगा एक्सटर्नल, और डॉट नेट अगर कुछ है तो इंटरनल रहेगा। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन आपका, आपको पब्लिश कर नहीं सकते, आप बाहर उसको एक्सपोज नहीं कर सकते इंटरनल यूआरएल को, राइट। बाद में अपने को ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का ऑलमोस्ट ऑल सबका सेम है, इंटीग्रेटेड विंडोज ऑथेंटिकेशन और बेसिक ऑथेंटिकेशन, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है ज्यादा। मैपी, मैपी प्रोटोकॉल आ गया यहाँ पे, ये भी, इसका भी मैपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट आ गया है। ऐसा ही सबका सेम रहता है, सिर्फ लास्ट में मैपी मतलब मैपी रहेगा, इतना ही चेंज होएगा। ऑथेंटिकेशन भी वैसा ही है, इसमें और कुछ एनटीएलएम भी दिया है, क्योंकि एक्सटर्नल भी कनेक्शन आना चाहिए ना यहाँ पे। विंडोज ऑथेंटिकेशन नेगोशिएट दिया है, सर्वर टू सर्वर ऑथेंटिक वो आत दिया है। ये एक दो ऑथेंटिकेशन का ये कैरबरस भी दिया है। कैरबरस मतलब इंटरनल अगर डोमेन ज्वाइन मशीन्स के लिए ये यूटिलाइज होता है, नहीं तो विंडोज ऑथेंटिकेशन नेगोशिएटेड ये भी होता है, ये भी अपना काम करता है, अगर अपने को चाहिए तो ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओएबी, ओएबी मालूम है ना क्या है? हाँ हर्षद, ओएपी? ओएबी, ओएबी नहीं सर। नहीं, ओके। आप आपको पता है कभी आउटलुक क्लाइंट में आपको कनेक्टिविटी अगर नहीं है, मतलब एक्सचेंज कनेक्टिविटी चलेगा या कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो आपको एड्रेस, वो आउटलुक क्लाइंट जब न्यू मेल ओपन करके कुछ तो ढूंढते हैं ना आप, किसी का कॉलीग का नाम, कांटेक्ट, आउटलुक कांटेक्ट ढूंढते हाँ हैं हाँ हाँ। ना। हाँ, वो कहाँ से आता है? अगर एक्सचेंज को कनेक्टिविटी नहीं है तो इट कम्स फ्रॉम दी ऑफलाइन एड्रेस बुक, वो ये भी, वो लोकली 24 आवर्स, एवरी 24 आवर्स अपडेट होता है आपके लोकल मशीन पे। लोकल केस जो मतलब प्रोफाइल बनता मतलब है ना, हमने पहले जो मेल पे किए रहे थे टाइम, मतलब तो उनके ऑटोमेटिक आते, वही बोल रहे क्या आप सर? क्या बोल रहे हैं, हाउ बोलो। जब हम टू में मेल आईडी डालते हैं तो वो पहले फर्स्ट टाइम हाँ ऑटोमेटिक हाँ हाँ आते हैं, वही हाँ हाँ, वही, वही है हाँ क्या? वही क्लाइंट, वही। तो वो क्या होता है, ये एक, अपना ग्लोबल एड्रेस बुक का रहता है। एक वो ग्लोबल एड्रेस बुक तो पता है आपको, है ना, ग्याल बोलते हैं हम जो। तो उसी तरह हाँ पे भी रहता है ऑफलाइन एड्रेस बुक, मतलब आपका अगर एक्सचेंज से कनेक्शन हट गया, ब्रोकन हो गया, या आप नेटवर्क पे नहीं है, स्टिल यू कैन एबल टू सर्च द यूजर नेम कॉन्टेक्ट लिस्ट, तो उसको हम बोलते हैं ओएबी। वो 24 आवर्स डेली अपडेट होता है आपके लोकल मशीन में। वो वहां से डाउनलोड करता है, कहाँ से? एक्सचेंज सर्वर से। जो भी एड्रेस बुक बन जाता है वो, उसका ये लिंक है, तो ये लिंक डिफॉल्ट बन जाता है, यहाँ से डाउनलोड होगा। इंटरनल रहेगा, एक्सटर्नल हमने अभी एक्सटर्नल जरूरत नहीं बोल के हमने
मॉडिफाई नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑफलाइन। ओएबी पूछेगा, ये ओएबी कब जनरेट होता है? ईच एवरी डे मिडनाइट में सर्वर पे जनरेट होता है, क्योंकि आपके आज 10 अकाउंट है, कल 20 अकाउंट होंगे, 30। तो डेली वो प्रोसेस करता है मेलबॉक्स सर्वर पे और ओएबी को जनरेट कराता है। तो वो बाद में तुम्हारा लोकल मशीन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होएगा, या नहीं तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी होता है वो। ठीक है। और सर और एक ऊपर की एक टैब थी, वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल यूआरएल था, आप बोल रहे थे। तो हम्म, वो यूआरएल मतलब हमें ही क्रिएट करना पड़ता है क्या? हाँ, हम ये एक्सटर्नल हमको ही करना है। अभी अभी फॉर एग्जांपल डिजिटल ट्रेनिंग डॉट इन है, तो हो सकता है हाँ, डिजिटल ट्रेनिंग डॉट कॉम रहेगा मेरा एक्सटर्नल यूआरएल। मतलब मेरा जो डोमेन पब्लिश जो है एक्सटर्नली, वो डोमेन यहाँ पे आएगा, ये मेरा इंटरनल डोमेन है ना। बाकी अच्छा का मतलब हमने हमने डोमेन क्रिएट किया है सपोज digital.com, तो वो एक्सटर्नल हाँ, में वही डालना है। हाँ, अब अभी हम लोग एक्सटर्नल, अभी कैसा है, दो ऑप्शंस है। आप इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही डोमेन रख सकते हैं, या अलग अलग भी रख सकते हैं। अभी डिजिटल डॉट कॉम यहाँ पे डालना है तो आप डाल सकते हैं। समझ गए, या कुछ कंफ्यूजन? थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर उसमें। ओके, ठीक है। देखो, इंटरनल यूआरएल मतलब क्या है? इंटरनल पब्लिक के लिए, इंटरनल नेटवर्क यूजर्स के लिए, करेक्ट। हाँ, एक्सटर्नल मतलब क्या है? जो इंटरनेट के थ्रू या पब्लिक नेटवर्क से जो एक्सेस करना है उनके लिए वो यूआरएल है, करेक्ट। तो हम क्या हाँ। करते हैं नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इंटरनल यूआरएल अलग रखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ये समझा, यही कॉपी करके आपको बताता हूँ थोड़ा समझने के लिए, तुमको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल के लिए था। मैं डॉट कॉम क्यों किया? क्योंकि कोई हैक नहीं कर पाए मेरे जो भी बाहर से आते कनेक्शन, उनको इंटरनल का यूआरएल एक्चुअली क्या पता नहीं। ये क्या होएगा, ये एक्सटर्नल है बट इट पॉइंटिंग टू इंटरनल ओनली। समझ गए? हाँ, तो अपना रियल जो डोमेन है जो इंटरनल का, वो एक्सपोज नहीं हो रहा है एक्सटर्नली, करेक्ट ना। हम सिक्योरिटी से बच रहे। कोई भी हैक कर सकता है ना अपना इंटरनल, अगर पता है तो। ये एक्चुअली ये डॉट कॉम इज ओनली लॉजिकल नेम, नॉट ए जो अपना साइट है, अपना डोमेन का नाम नहीं है, डिफरेंट है। तो ये मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं क्या, मतलब वहाँ पे ऐसा ये नहीं क्या? हाँ, हाँ, कुछ भी रख सकते हैं, मगर वो पब्लिश होना चाहिए। आप पब्लिक करना चाहिए वो आईएसपी से। बाहर से अपने को खरीदना है वो, ऐसा ही मतलब नहीं रख सकते। वो आपको डोमेन रहना चाहिए आपके, पब्लिकली पब्लिश करके। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, गोडैडी से, कहीं से तो आपको खरीदना है वो, पैसा देके ईयरली बेसिस पे उसका चार्ज रहता है। समझ गए? हाँ, अभी जैसा फॉर एग्जाम्पल विप्रो डॉट कॉम, ये पब्लिक डोमेन है ना। हाँ। वो मिल रहा है ना आपको बाहर, अगर आप उस पर एमएक्स रिकॉर्ड अगर आप चेक करेंगे तो मिल जाता है विप्रो डॉट कॉम। तो इसका मतलब आप वो रख सकते हैं यहाँ पे विप्रो डॉट कॉम, ऐसा एग्जाम्पल। तो उसी तरह आपका एक्स वाई जी डॉट कॉम डोमेन है, तो एक्स वाई जी डॉट कॉम डोमेन यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी मतलब मतलब अभी digital.com हमने खरीद लिया है, तो हमें वो यूज़र तो कर रहे हैं, फिर भी हम्म, हमें थोड़ा-सा और एक खरीदना होगा, मतलब वो हाँ, मतलब सिक्योरिटी रीज़न के लिए, ऐसा है क्या ये? हाँ, 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 एग्जैक्टली। आप कितने भी डोमेन्स खरीद सकते हो, वो वहां पे पब्लिक जो भी कुछ देना है दो। बट वो तुम्हारा इंटरनल पॉइंटिंग तुम्हारे इंटरनल यूआरएल को ही कर रहा है, वो रिडायरेक्ट होगा ऑटोमेटिकली अंदर से। बाहर से अच्छा, वो आएगा, बट इंटरनल फायरवॉल पे रिडायरेक्ट होएगा ये इंटरनल पे। मतलब इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो कनेक्टिविटी जिधर जा रहा है वही जा रहा है, इंटरनल के लिए भी वही जा रहा है, एक्सटर्नल के, बट सिर्फ यूआरएल डिफरेंट है एक्सटर्नल के लिए। क्यों? सिक्योरिटी रीजन। तो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, किसी को पता चलेगा तो हैक करके अपना सर्विसेज को इंटरप्ट करेगा, करेक्ट। मतलब फायरवॉल थ्रू करते हैं क्या ये हाँ, ये ऐसा? फायरवॉल के थ्रू, क्योंकि अपना कनेक्शन जो एक्सटर्नल कहाँ से आता है, फायरवॉल के थ्रू ही आएगा ना, डायरेक्टली एक्शन सर्वर हाँ, नहीं आएगा। आपका फायरवॉल रहेगा, वहां पे ये यूआरएल पब्लिश रहेगा, तो वो आपके फायरवॉल पे आएगा। आने के बाद क्या करेगा, वो रीडायरेक्ट करेगा किसको, इंटरनल यूआरएल को। फिर ये एक इंटरनल कनेक्शन एस्टेब्लिश, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल का कनेक्शन वहीं पे जाएगा, बट सिर्फ यूआरएल डिफरेंट रहेगा एक्सटर्नल वालों के लिए। क्लियर है, या और कुछ थोड़ा सा हाँ, बताओ? क्लियर क्लियर है सर। ओके, गुड।
सिर्फ सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम अलग रखते हैं। अगर आप चाहे तो सेम यूआरएल पे रख सकते हैं, बट वो रिस्क रहता है क्योंकि तुमको एक्सपोज कर रहे हैं ना, तुम इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही हो रहा है, करेक्ट ना? यस। हाँ, वही रीजन वही है, बाकी कुछ नहीं। अभी ओवा आउटलुक वेब एक्सेस, इसका यूआरएल भी इंटरनल और एक्सटर्नल अलग रहेगा। ठीक है, इसका भी सेम है, सिर्फ जो इंटरनल यूआरएल अलग है और एक्सटर्नल भी मैंने रखा है, बट अपन चेंज कर सकते हैं, बट मैंने सेम रखा है। बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, हम एक्चुअली यहाँ पे इन है तो डॉट कॉम ऐसा कुछ करना चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल डिफरेंट होना चाहिए। और ऑथेंटिकेशन का बस प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉर्मेट किस तरह का चाहिए वो यूटिलाइज करना है। तो ये मतलब फॉर्मेटिंग है, किस तरह का तुमको यूटिलाइज, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए तो डोमेन बैकस्लैश यूजर नेम ऐसा आएगा, तुमको जैसा चाहिए। ऑथेंटिकेशन का टाइप है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर्स में क्या क्या है, ये सब फ्यूचर्स है। इंस्टेंट मैसेजिंग एनेबल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग है, यूनिफाइड एक्सचेंज कॉन्टेक्ट, ये सभी फ्यूचर्स आपको क्या क्या देना है आउटलुक वेब एक्सेस वालों के लिए, राइट। कुछ तो लिमिटेशंस करना है तो लिमिट कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड का देना है क्या नहीं, ऑप्शन नहीं देना है, ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर्स के रिलेटेड है, कोई आपको कोई फ्यूचर्स को हटा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो आप कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं ना, ब्राउजर से, मे बी आपके पर्सनल मशीन से कर रहे थे, आपको कुछ चीजों को हटा सकते हैं, जैसा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए या यूनिफाइड मैसेजिंग का ऑप्शन नहीं है, ये सब कुछ आप रिमूव या ऐड कर सकते हैं। और फाइल एक्सेस का ऑप्शन, अभी फाइल मतलब आप वेब ब्राउजर से कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फाइल डाउनलोड कराना है, एक्सेस कराना है, ये आपको रिस्ट्रिक्शन डालना है। पब्लिक आर शेयर, ठीक है, सेलेक्ट हाउ यूजर्स कैन व्यू एंड एक्सेस अटैचमेंट फ्रॉम पब्लिक आर प्राइवेट कंप्यूटर, पब्लिक आर शेयर कंप्यूटर्स को एक्सेस कराना, ये चेक मार्क दिए तो एक्सेस होएगा, नहीं तो हटाएगा तो चेक एक्सेस नहीं होएगा। तो ये तो डाउनलोड ही नहीं होगा, मतलब व्यू भी नहीं होगा। हाँ डाउनलोड भी नहीं होगा और व्यू भी नहीं होगा अटैचमेंट एग्जैक्टली मतलब। exactly. मतलब आपको रिस्ट्रिक्शंस करना किस तरह आपको अभी सब बैंक के वगैरह कुछ मेल्स रहेंगे, अटैचमेंट रहेंगे, तो आप पब्लिक किसी पे नेटवर्क पे डाउनलोड कर नहीं सकते, राइट। इट इज सिक्योरिटी पर्पज या सिक्योरिटी रीजन नहीं आपको अलो है, करेक्ट ना। यस। तो वो हिसाब से आपका कैसा इन्वायरमेंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते, अलो कर सकते, वो डिफाइन करना है, बाकी कुछ नहीं। वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जाता है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स हो गए, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं वर्चुअल डायरेक्टरीज, ठीक है, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट बन जाते हैं जैसा एक्सचेंज हमने इंस्टॉल किया। अभी हम आएंगे सर्टिफिकेट्स पे, आपको बोला था सर्टिफिकेट, हाँ। ठीक है, ये हमारे सर्टिफिकेट्स है। ठीक है, ये मैंने एक बनाया था, ये छोड़ दो। अभी डिफॉल्ट जो है अपना ये एक्सचेंज सर्वर के बने हैं, ठीक है, देखो ये एक्सचेंज सर्वर का, इसको मैंने ओपन करता हूं, आपको इसके बारे में समझाता हूं। अभी जनरल मतलब ये नाम है, वैलिड स्टेटस वैलिड है, किसको इश्यू किया, ये सर्वर को इश्यू किया उसने, एक्सपायरी कब हो रहा है 2024, ये सब डिटेल है, ठीक है। और आपके सब्जेक्ट अल्टरनेट मतलब जितने भी एक्सचेंज सर्वर्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, जैसा कि ये 2 सर्वर ऐड है, हर एक आपने इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिक मतलब क्या होगा, ये उसको ऑटोमेटिक ऐड होएगा। इससे मतलब समझ में आया कि अपने इन्वायरमेंट में 2 से 3 सर्वर्स है तो वो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए हेल्प है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सर्वर्स है यहाँ का वहां पर नाम ऐड होएगा, आना चाहिए। अभी अपन ने यहाँ पे एक्सटर्नल डोमेन का नाम भी डाला, जैसे कि digitaltraining.in है, अगर मैं digitaltraining.com डालू, digital.com कुछ भी अगर पब्लिश करो एक्सटर्नली, तो वो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आना चाहिए, क्योंकि उसको अवेयर होएगा कि हाँ ये मेरा एक नॉर्म यहाँ पे डीएनएस नेम है यहाँ पे, तो वो हिसाब से वो ऑथेंटिकेट कराएगा, वो अलो करेगा, ठीक है। या जितने भी अलग अलग और नाम आएंगे डीएनएस के, सैन नेम जो सब्जेक्ट अल्टरनेट नेम हम बोलते हैं, वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे।
1 से 2 अगर रहेंगे तो भी अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज, अपने को यहाँ पे सर्विसेज को क्या क्या अलाउ कराना है, अपने को SMTP चाहिए और IMAP चाहिए, पॉप ये तो ऑप्शनल है, अगर अपने को चाहिए नहीं चाहिए अपन रिमूव कर सकते हैं। IS तो चाहिए, क्योंकि जो कनेक्ट क्लाइंट कनेक्ट सर्विसेज कहाँ से आता है, IS से आता है, क्लाइंट एक्सेस सर्विस से, तो ये भी चाहिए। ये यूनिफाइड मैसेजिंग है और ये है, ये यूनिफाइड अपने को चाहिए या नहीं चाहिए अपने एक पे डिपेंड, अगर चाहिए तो हम इसको चेक मार दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। सर फिर से एक बार जनरल में जाइए ना। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलो। जनरल टैब में जाइए ना एक बार जनरल। हाँ ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक्सपायरी डेट आ रहा था वो कैसे, मतलब वो उसका ये ऑटोमेटिक आता है ना, ये 5 साल के लिए है ये मतलब अभी आज किया अभी इंस्टॉल एक्सचेंज हाँ सर्वर, तो 5 साल के लिए रहता है क्या वो? हाँ हाँ, ये इंटरनल सर्टिफिकेट है। एक्सटर्नल सर्टिफिकेट 2 साल के लिए रहता है। दो टाइप के अच्छा। सर्टिफिकेट है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अपने को खरीदना पड़ता है वेंडर से, गोडैडी या और दूसरे लोगों से, ठीक है। वो 2 ईयर हाँ। का एक्सपायरी रहता है, 24 मंथ। और ये है इंटरनल, सेल्फ साइड हम बोलते हैं, ऑटोमेटिक जनरेट होता है एक्सचेंज सर्वर पे जैसा हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मतलब वो डाउनलोड करना पड़ता है और मतलब हाँ पहले हाँ खरीदना पड़ता है फिर डाउनलोड के लिए ऑप्शन आता है क्या हाँ उसमें? है, आता है ना डाउनलोड के लिए, मैं वो सर्टिफिकेट स्टोर में डाउनलोड के लिए भी ऑप्शन आता है, मैं बता दूं तुमको चाहिए तो, ठीक है। डाउनलोड के लिए आता है, और ये डाउनलोड करके और किसी और सर्वर पे भी डालने के लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है, इंपोर्ट कर सकते हैं पर्सनल सर्टिफिकेट। मतलब सेम सेम सर्टिफिकेट हम क्योंकि कुछ कुछ टीम है हमारे इधर, उनको एप्लीकेशन मतलब ये करते करेक्ट, हो, तो उनको वो ये नहीं क्या हमें मेल करते कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट है हम उनको सेंड कर देते हैं, तो वो एग्जैक्टली बोलते हैं तो हम बोलते हैं आपके एंड से आपको बाइंडिंग करना होगा ऐसा, हमें तो मतलब एग्जैक्टली, डिटेल मालूम है क्या करते हैं, सब सिर्फ दे देते हैं हम, बाकी तो मतलब उसका राइट। हाँ वो बाइंडिंग कहाँ पे करना, मैं समझाता हूँ आपको, मैं ये खत्म हो जाए यहाँ पे पर्सनल स्टोर में आता है, मैं कैसा वो बाइंडिंग करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। नॉर्मली बाइंडिंग कैसा एप्लीकेशन में होता है, अभी मैंने बताया ना यहाँ पे, ये इसको हम बाइंडिंग बोलते हैं। अगर मैंने ये हटा दूं, एग्जांपल ये हटा दिया, समझ लीजिए चेक मार्क हटा दिया, तो ये सर्विस को बाइंडिंग नहीं हुआ वो, समझ गए। अच्छा। तो मैं जिस सर्विस मेरे को चाहिए उसको मैं ये चेक मार दूंगा तो इसके साथ बाइंड हो गया वो सर्टिफिकेट। अगर मैं अनचेक करूंगा तो ये सर्टिफिकेट ही है बट सर्विस को बाइंडिंग नहीं हुआ। उसी तरह वो लोग क्या करते हैं अपने एप्लीकेशन में, पहले वो पर्सनल स्टोर में सर्टिफिकेट का इंपोर्ट करते हैं, आप जो सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड भी दिया होगा वन कुछ भी, वो पासवर्ड के साथ में वो सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। .cr के हिसाब से फाइल रहता है, .cr राइट, लास्ट में सर्टिफिकेट का वो इंपोर्ट होएगा, फिर यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन, उनकी एप्लीकेशन वैसे है हमको यहाँ पे। तो ये बाद में हमको बाइंडिंग करना है, फिर ये सर्टिफिकेट उसको साथ में बाइंडिंग होगी। तो मैं आपको वो पर्सनल सर्टिफिकेट का एक टैब बताता हूँ, रुको, तो आपको समझ में आएगा। पर्सनल स्टोर मतलब वो कौन सा है? सर्टिफिकेट का स्टोर, एक मिनट मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। सर्टिफिकेट का पर्सनल स्टोर सर्टिफिकेट रहता है, वो स्टोर रहता है, सभी सर्टिफिकेट यहाँ पे आके मिल जाते हैं आपको। देखो ये सर्टिफिकेट का स्टोर है, सी सर्टिफिकेट पर्सनल, ये दिख रहा है। वहां पे जो सर्टिफिकेट है ना, वहां पे हमने देखे यहाँ पे आए हो, जैसा कि ये एक्सचेंज 2016, ये देखो तुम्हारा एक्सपायरी, ये वैलिड फ्रॉम 25। इसका डिटेल्स में अगर अपन जाएंगे, सैन नेम मेन जो है, सैन नेम रहता है, सब्जेक्ट अल्टरनेट नेम, वो जो जो रहेगा, देखो ये वहां पे दिख रहे थे दोनों नाम, देखे ना आप ये, मतलब जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे पहले इंपोर्ट होंगे, राइट, उसके बाद अपने वहां जाके एप्लीकेशन में बाइंडिंग करना पड़ेगा, वहां पे चेक मार्क देना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो सेम तुम्हारा टीम करता है एप्लीकेशन वाला, तुम सिर्फ सर्टिफिकेट देते, वो लोग क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। मैं बता दूं इंपोर्ट का भी, अभी देखो राइट क्लिक करो, ऑल टास्क इंपोर्ट दिख रहा है, ये न्यू हाँ। सर्टिफिकेट को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अभी अपने पास ऑलरेडी अगर तुमने दिया, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पाथ आपका वो .car जो है, वो हाँ सही सर्टिफिकेट है। PKI में वो जो भी रहेगा फॉर्मेट, यहाँ पे मैं ब्राउज करूंगा, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके लेके आऊंगा उसको, मैं ये सेलेक्ट करके ओपन करूंगा, तो जैसे ओपन करूंगा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये हाँ
सर्टिफिकेट यहाँ पे आने से कहाँ पे आपको दिखेगा, आपके एक्सचेंज सर्विसेज के टैब में यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ बाइंडिंग करना है और कुछ करना नहीं है। जैसे मतलब हमें भी दिखेगा क्या इधर उन्होंने अगर बाइंडिंग किया तो? हाँ हाँ दिखेगा, हमको हमारा एक्सचेंज का रहेगा तो दिखेगा, जो अपना अपना एप्लीकेशन के हिसाब से अपना अपना रहेगा वो। मतलब हम चेंजेस कर सकते हैं क्या उनके लिए, अगर कुछ करना है तो हमारे एंड से? हाँ क्या वो चेंजेस मतलब क्या चेंज करना है आपको? वही कि वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ बल्क मिल जाते हैं, मतलब उनको रिसिपिएंट को। सपोज करेक्ट। अभी अपना एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ऑटोमेटिक उनको मिल हाँ जाते हैं ना हाँ 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 वो हाँ वैसा। हाँ। वैसे मेल उसके वो लिए यूज कर सर्विस सकते से देखो, सर्टिफिकेट कैसा होता है मैं बोलता हूँ। ये तो आप नया लेना है, मतलब आपके पास नहीं है तो वो सब डिटेल्स दे के ओनर कौन है उसका सब कुछ देना है। ये रहता है, दूसरा ऑप्शन रिन्यू करने का रहता है, मतलब ऑलरेडी एक्सपायर होने वाला है उसको हमको रिन्यू करना है। दो टाइप्स की चीजें होती है। ये आपको अगर करना है तो उसका सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर रहेगा, सीए सर्वर बोलते हैं अपन, सीए। हाँ हाँ। वहां पे उसको रिन्यू करना है या नया करना है, वहां पे करना पड़ता है। आप सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो सर्वर पे जाके वो ऑथेंटिकेट होएगा और वो टाइम स्टैम्प आएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक वैलिड है। यहाँ पे आप रिन्यू नहीं कर सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट बना के भेज सकते हैं सर्वर से। वो सीए सर्वर क्या करेगा, वो जो भी डिटेल देते ना रिक्वेस्ट में, वो आपको वहां पे जनरेट करेगा आपका सर्टिफिकेट, वो डिटेल के साथ में आपको ऑथेंटिकेट कराएगा। वो आप जनरेट चेंजेस वो नहीं कर, सिर्फ आप रिक्वेस्ट दे सकते, क्योंकि आप सीए सर्वर के एडमिन नहीं है। अगर आपके पास सीए सर्वर है, आप उसके ओनर है या आपके पास एक्सेस है तो आप कर सकते हो सब चेंजेस। मतलब वो फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है क्या सीए सर्वर? हाँ हाँ राइट राइट। ठीक है। अच्छा, वो इंस्टॉल करते हैं क्या एप्लीकेशन टीम वाले? हाँ हाँ वो लोग करते हैं ना। वो लोग देखो यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हुआ है सर्विस, दिख रहा है आपको? कोई हाँ हाँ। बाइंडिंग नहीं। ये अगर बाइंडिंग अपने को वो लोग जैसा सर्टिफिकेट मिलता है ना, अगर ये एग्जांपल ये है तो इसको सेलेक्ट करते हो लोग, अब मेरे को आईएएस को बाइंडिंग करना है, एसएमटी को बाइंडिंग करना है, तो ये जब भी वो ये सर्विसेज को सर्टिफिकेट बाइंडिंग हो गया। ठीक है। सर फिर उनको भी ऐसे ही टैब आते हैं क्या वो सर्वर्स, और हाँ उनको नहीं भी उनको भी हर एक्सेस? का अलग अलग है। एक्सचेंज का मतलब ऐसा है, एक्सचेंज के लिए ऐसा है, एप्लीकेशन का अलग रहता है उनका। हर एप्लीकेशन का अपना अपना प्रोसेस अलग है, अपना ये एक्सचेंज का इस तरह का आता है। ठीक है। क्लियर है या कुछ और डाउट है अरशद? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। तो अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मंडे और कल से अपन नेक्स्ट करेंगे। मंडे क्या टाइमिंग कैसा करने का, आपका क्या शिफ्ट कंटिन्यू है क्या है? नहीं, मेरा 7 बजे का शिफ्ट है, मैं 7 से 3:30 बजे का है। हाँ तो हाँ मैं 5 बजे नहीं, तो 7 बजे के बाद कर सकते हैं क्या इवनिंग को? 7 बजे ना, ठीक है। मैं देख के 7 बजे के साथ आपको मैं टाइम भेजता हूँ। कल सुबह में भेजता हूँ, कल सुबह में दोपहर तक आपको टाइमिंग भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। चले ठीक है। तो भाई ये रिकॉर्डिंग सेशन आपको भेजता हूँ और वो स्लाइड भी भेजता हूँ, ठीक है। तो ओके सर, ठीक। कंटिन्यू करिए। ओके चलो टेक केयर बाय।